Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 6th. Okay, subject है आपका मैथ्स और चैप्टर जो मैंने आपका सेकेंड स्टार्ट किया था, जिसमें आप देख रहे हैं क्या फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स and today's topic is to find prime numbers between 100 and 200. What? To find prime numbers between 100 and 200. We have already seen the prime numbers up to 100. Okay, let us see today what are the prime numbers between 100 and 200. I think you all know what 15 into 15, that gives you how much? 225, isn't it? आप देख लो 15 में 15 से 75 और ये तो ये 225 and 225 is greater than what? 200. 225 is greater than 200. Let us take suppose 14 into 14 क्या करेंगे? So 14 into 14 for the 56 and it becomes 196. So ये 196 जो है वो less than 200 है. So that is why we will consider 15. Okay, but not what? But not 14. And what we have to do with this 15? Okay, I will tell you. First of all, okay, we have to adopt some rules. Okay, like, and rule how, what is the given? Examine whether the given number is divisible by any prime number less than 15. What is that? Examine, okay, whether the given what number, okay, it is not prime, it is number, given number, okay, is divisible by any prime number less than 15. Now you got why we are considering 15. अगर या if yes मतलब divisible है, then okay, what? It is not a prime. It is not prime. Divisible है तो वो prime नहीं है. Okay, otherwise it is a prime. Otherwise, okay, it is prime. So let us take some example. हम example देखेंगे, then you will get it. Let us understood what about this 117. 117 जो है वो क्या है? 17 से बड़ा है 117 और 200 से, मतलब इसके बीच में है ये नंबर. And we have to check whether the given number is prime or not. So what I told you, okay, examine whether the given number is divisible by any prime number less than 15. अब 15 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या है हमारे पास? 2 1 तो होता नहीं है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हमारे पास क्या प्राइम है? 5 है, 7 है, और क्या है? 11 है और 13 है. सो ये जो 117 है, आई थिंक इट इज़ डिविजिबल बाई व्हाट? 13. ओके, एक मिनट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. 117 इज ओके divisible by what? 13, since 13 is less than 15 and 13 is also a prime number. Therefore we can say that it is okay, not what? Prime, isn't it? Therefore we can say that it is not a prime number. Which one? 117 is not a प्राइम नंबर. यही तो हमारा कंडीशन था. अगर हम ये 100 के और 200 के बीच में हम किसी नंबर का नंबर का n, जैसे हमारा अभी नंबर 117 था, हम वी आर चेकिंग दैट वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट. ओके, तो हमने क्या बताया कि 15 को हम पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि 15 जो होता है 225 होता है ग्रेटर देन 200,
और 14 119 6 होता है, तो लेस देन 200, तो हम 15 को कंसिडर करते हैं। और 15 से लेस ओके जो भी प्राइम नंबर होगा, अगर इन प्राइम नंबर से ये नंबर जो है वो डिविजिबल रहेगा, अगर इफ ओके डिविजिबल देन नॉट ए प्राइम, नॉट प्राइम, if otherwise otherwise it is prime. You got it? So चलिए यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मैंने बताया था 117 को चेक करते हैं। सो 115 से छोटा जितने भी वी कैन राइट इन इंग्लिश व्हाट प्राइम नंबर्स लेस देन 15 क्या क्या है अपने पास? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 15। सो अब हम देखेंगे 117 इज डिविजिबल बाई 13 और 13 यहाँ पे है। Therefore what we can say, it is not prime. Which one? 117 is not prime. यही तो मैंने बताया था कि if examine whether the given number is divisible by any prime number less than 15, if divisible then it is not a prime, or else it is a prime. Let us take some other example number 2 हम देखेंगे, that is 139। अब हम 15 से since 139 between 100 and 200, तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा? 15। 15 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है क्या है? 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। नाउ what? Check 139 is divisible by any one of 2 3 5 7 11 13। इनमें से किसी एक से भी डिविजिबल है? तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 314 और 314 प्लस 9 इट गिव्स यू 13, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से तो नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। तो लेट अस टेक, सो व्हाट वी कैन से डिविजिबल नन ऑफ देम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं hence what we can write, 139 is divisible by none of them, therefore 139 is a prime number, therefore 139 which is a prime number. You got it? The basic difference between the previous example and the example this example. If चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कम्प्लीटली। सिंस 193 जो है वो बिटवीन कहाँ से है? 100 से 200 है, देयरफॉर 15 विल बी व्हाट? स्टैंडर्ड वैल्यू। 15 से लेस प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13। अब हम चेक करेंगे, चेक क्या 193 इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम और नॉट। तो आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 193 जो है इज डिविजिबल इज, और वी कैन से नॉट डिविजिबल बाय एनी of the following. So hence
what we can write, 193 is a prime number. So 193 is a prime number. So this is how you have to understood this kind of questions. Now let us take prime number. अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्राइम नंबर बिटवीन 200 से हम क्या चलेंगे 400 के बीच में, और वी कैन से 100 से भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर हम ले लेंगे, जैसे कि 100 से और 400 के बीच में भी हम चेक कर सकते हैं। बट कैसे, यहाँ पे what will be our स्टैंडर्ड वैल्यू। पिछले केस में तो हमें 15 सिलेक्ट कर लिया था। अब देख लीजिए, अब 20 इंटू 20 हमारे पास कितना होता है 400, 21 कितना होता है 441, जो कि ग्रेटर हो जाएगा 400 से। सो हम जो लेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू, द स्टैंडर्ड वैल्यू वी विल कंसीडर इट इज़ 20। सो हमारा 20 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो 20 से स्मॉल प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा। तो दो वैल्यू हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। कौन कौन से 2, 3, 5, 7, 11, 13 and more some 17 and 19. So these numbers are the lesser prime numbers than the 20. अब now हम क्या पे चेक करेंगे divisible. Let us take some example. Like we have to check 263. अब ये 263 है, तो हम इसको क्या करेंगे 263 से हम इसमें से डिवाइड करेंगे। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 6, 2, 8, 3, 11 नहीं है डिविजिबल 3 से, तो नहीं होगा ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से 5 मतलब 0 और 5 होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। 7 से मालूम है मल्टीपल होना चाहिए किसके, डू यू रिमेंबर what is the case with the 7? Okay, it is very much important. Okay, I am not going to tell again and again, but you have to what answer. So आप इसको चेक करना, जो 263 जो है वो is not divisible by any of them, is not divisible, therefore 263 जो है वो इज प्राइम नंबर। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं, कोई एग्जांपल्स इसके। हमारे पास 20 से स्मॉलर क्या क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। एक मिनट, 17 और हमारे पास क्या है यहाँ पे 17 है और हमारे पास 19 है। चलिए तो हम चेक करते हैं कुछ अगला प्रॉब्लम। लेट अस टेक 323। अब ये 323 है कि किससे डिविजिबल है, आई थिंक इट इज़ डिविजिबल बाय 17 से है क्या। 323 17 एकम 17 यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 और यहाँ पे 2 में से 1, 3 से 17, 9 जा कितना 63 से 9 ओके 9 1, सो ये 9 टाइम्स में 143, सो ये डिविजिबल है। 323 बाई 17 कितने टाइम्स में 19 टाइम्स में। ओके सो हैंस 323 इज व्हाट डिविजिबल by 17, therefore 323 is not prime number, एक से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। So 323 is not a prime number. Now let us take some other problem. For example, we have 361. Okay, 361 is what divisible by 19, since you know what 19 mean
19 टाइम्स में जाता है। देखिए 19 इंटू 19 क्या होता है, वो आपके सामने 361 ही होता है। सो 361 is divisible by 19, therefore what we can say, it is not a prime number. So we in this way we can find out 200 से 400 के बीच में जितने भी प्राइम होंगे, already we have seen 100 to 200, 200 to 400 we also you can find it out. So I think you got the finding the prime numbers between 100 and 400, between 100 and 400. 100 already आपको मालूम है, 100 to 200 भी आपने देख लिया, और 100 से 400 भी आपने I mean to say 200 to 400 भी आपने देख लिया।